شروع اللہ تبارک و تعالی کی پاک ذات نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ آج آپ تمام ہی ماؤں بہنوں کے سامنے وہ ساری باتیں پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذات پر غور و فکر کر کے کیسے قدم اٹھانا چاہیے، اپنی ذات پر غور و فکر کر کے اللہ کی تعریف کیسے بیان کرنی چاہیے، اپنی ذات پر غور و فکر کر کے اللہ کی بڑائی کیسے بیان کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کیسی کرنی چاہیے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی جہاں تک موقع ملے گا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالی نے دنیا کے اندر 18,000 قسم کے مخلوقات پیدا فرمائے ہیں۔ 18,000، 18 یا 1800 کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 18,000 قسم کے مخلوقات پیدا فرمائے، جن میں سے کتنے ایسے ہیں جو بے زبان ہے، کتنے ایسے ہیں جس کو زبان ہے لیکن بولی نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دی ہے، بولی بھی دی ہے۔ ان سارے مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند اور سب کا بادشاہ حضرت انسان کو بنایا ہے۔ لیکن انسان آج اپنے اوپر غور و فکر چھوڑ کر کے غیروں کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے پاس کوئی سامان چائنا کی آئے یا کوئی سامان ہمیں دکھایا جائے تو ہم تعریف کرتے ہیں، اللہ کتنا خوبصورت ہے، بنانے والوں نے کتنا اچھا بنایا ہے، ہم یہ تعریف کرتے ہیں۔ اے انسان، اس کی تعریف چھوڑ، تو خود اپنے جسم پر غور و فکر کر کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا بہتر بنایا ہے، تجھے کتنا اچھا بنایا ہے۔ جس دن انسان اپنے جسم پر غور و فکر کرنے لگے گا، اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنے لگے گا، اپنی ذات پر غور و فکر کرنے لگے گا، اس دن سے ناشکری ساری بند ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا اس دن سے چاہت ہو جائے گی ہمارے دل میں۔ لیکن ہم نے ساری چیزوں کو پیچھے ڈال کر کے بس ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو سامنے وہی بہتر ہے، حالانکہ اس کو بھی بنانے والا انسان ہی ہے، اس کو بھی بنانے والا انسان ہی ہے۔ دنیا کے اندر جب 18,000 قسم کے مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، سارے مخلوق کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کن، وہ مخلوق بن گیا۔ جب آسمان کی باری آئی، آسمان کو بھی کہا کن، ہو جا، تو آسمان بن گیا۔ زمین کی باری آئی، زمین کی سطحوں کی باری آئی، سارے چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کے ذریعے حکم فرمایا اور وہ چیز بن کر تیار ہو گئی، وہ مخلوق بن کر تیار ہو گئی۔ اے حضرت انسان، جب تیرا وجود رکھا گیا تیری ماں کے رحم میں، جب تیرا وجود رکھا گیا ایک ناپاک منی کے قطرے کے ذریعے جس کو تو ہاتھ لگانا پسند نہیں فرماتا ہے، تو فرشتے کو کن نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہو جا، ہو گیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ذرا ٹھہر جاؤ، اس کا مجسمہ، اس کی خوبصورتی، اس کا ناک، اس کا کان، اس کی آنکھیں، یہ ساری چیزیں میں اپنی ہاتھوں سے بناؤں گا۔ لیکن آج انسان اپنے اوپر غور و فکر چھوڑ کر کے غیروں کی تعریفوں میں لگا ہوا ہے۔ ذرا اندازہ لگائے نا، یہ ناک اگر یہاں پیچھے ڈال دیا جاتا تو کیسا لگتا؟ یا اگر یہ بھویں نہیں ہوتی، کئی لوگوں کی پیدائشی بھویں نہیں ہوتی ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ کئی لوگوں کی یہ پل نہیں ہوتی، کتنا برا لگتا ہے۔ اندازہ لگائے نا، یہ زبان جو دانتوں کے اندر رکھا گیا ہے، اگر دانت نہ دے کر کے خالی زبان دے دیا جاتا، کیا ہم کھانا کھا پاتے صحیح سے؟ اتنے بہترین مجسمے کو تیار کرنے والی ذات کی اگر تعریف چھوڑ کر کے غیروں کی تعریف کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ذات کو کیا وہ تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا اتنی بہترین سانچے میں ڈھالنے والی ذات عبادت کے قابل نہیں؟ کیا اتنے بہترین سانچے میں ڈھالنے والی ذات
हमारी तारीफ, बड़ाई, सताइश के काबिल नहीं, लेकिन हमने इन सारी चीजों को पसे पुष्ट डाल दिया है, इन सारी चीजों को हमने पीछे छोड़ दिया है। बस हम ये चाहते हैं कि भाई हम जो है, हमारे अलावा हमारे खाने पीने के सारे असबाब होने चाहिए, हमारे रहने के सारे असबाब होने चाहिए, दूसरी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बना करके, हमारे ताबे सारे मखलूक को करके क्या चाहते हैं अल्लाह ताला? कभी हमने गौर व फिक्र किया? भाई हमारे द्वार पर अगर टेंट हमें लगाना हो, अभी मैंने बाजा बजाया था, नज़म बजाया था, इसके पीछे का मकसद क्या? कि तमाम मस्तूरात हाजिर हो जाए, तालीम होने वाला है, तमाम मस्तूरात तशरीफ लाए, तालीम होने वाला है। इसके पीछे का मकसद ये है। हमारे द्वार पर अगर हमें टेंट लगाना हो तो उसके पीछे का मकसद क्या? कि बेमकसदी टेंट, हाँ अबरार भाई टेंट वाले आइए, टेंट लगा के लेके चले जाइए। ऐसा होता है कभी भला? आप चौक पर जाएं, बेमकसद जाएं, ऐसे आ जाएं, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है। जब हमारा छोटा छोटा काम बेमकसद बेबुनियाद नहीं हो सकता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा इतना खूबसूरत मुजस्समा, हमें इतने हसीन चेहरे, हमें इतने अच्छे कद व कामत दे करके दुनिया में, इसके पीछे का मकसद फिर क्या है? कुरान करीम उठाए, कुरान करीम के अंदर साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। क्या इंसान और जिन्नातो, सुन लो कान खोल करके, मैंने तुम्हारा मुजस्समा इसलिए तैयार किया है, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो, ताकि तुम आपस में भाईचारगी पैदा करो, ताकि तुम आपस में नफरतों को खत्म करो, ताकि आपस में गरीबों की मदद करो, ताकि आपस में तुम बेवाओं की, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसकी मदद करो, ताकि तुम बेसहाराओं का सहारा बनो, ताकि तुम पिछड़े हुए को उठा करके आगे लाओ और ऊपर चढ़ाने की कोशिश करो। लेकिन आज हमारे यहाँ हालात क्या बना हुआ है? कोई अगर आगे चढ़ने की कोशिश करता है, कोई अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हम ये चाहते हैं कि किस तरह उसको घसीट करके पीछे लाया जाए, किस तरह उसको घसीट करके खाई में डाल दिया जाए, किस तरह उसको घसीट करके सबसे पिछली सब में खड़ा कर दी जाए। वो केकर जानते कि कहकड़ो जाना छानी बाल्टी नम कहकड़ो रख लो रहे, कोई पूछल के ते सब बाहर कहे न निकली रहला सा, कि तुम में से हर सब के सब अंदर पड़ा हुआ है, एक दूसरे को नोचा खोटा वही होता है ना अंदर में। तो किसी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? तो उसने जो जवाब दिया ना वो सुनने के काबिल है। उसने कहा कि हम निकलना तो चाहते हैं, निकल भी जाते हैं, लेकिन हमारे बिरादरी वाले इतने अच्छे हैं, इतने बेहतर है कि हम बाहर अब निकलेंगे वो हमारी टांगे पर के खींच लेता है। आज हमारे हालात यही बना हुआ है। मैं यही की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह का यही माहौल बना हुआ है कि बस मुझे आगे निकलना है, दुनिया पीछे रह जाए, कोई हर्ज की बात नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि कोई पीछे छूट रहा है उसको साथ लेकर के आगे चलो, कोई परेशान है तो उसकी देखभाली करो, कोई हैरान है तो उसकी देखभाली करो, कोई बेसहारा बना हुआ है तो उसका सहारा बन के उसके सामने खड़ा हो जाओ, कोई बेहिम्मत है, कोई परेशान है, कोई डर रहा है तो उसके डर को खत्म करके उसको सहारा दे करके उसको ऊपर चढ़ाना है, बुलंदी पर ले जाना है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। लेकिन आज हमने उन सारी तालीमात को कोसों दूर हमने छोड़ दिया है। हमें पता तक नहीं चलता है कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है, क्यों पैदा किया है? इबादत के लिए पैदा किया। इबादत कैसे होगी? इबादत के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या सिर्फ सर झुकाने से, मुसल्ला पे सर टेकने से इबादत हो जाएगी? या सिर्फ नमाज पढ़ लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत दे देंगे? हम नमाज पढ़ते रहे अपनी जिंदगी में, इबादत करते रहे, दूसरों की बुराई भी करते हैं, दूसरों की चुगली करते रहे, दूसरों में झगड़े लगाते रहे, तो फिर हमारी इबादत हमें कुछ नफा देने वाली नहीं है, फिर हमारा सजदा हमारे लिए कुछ नफा बख्श होने वाला नहीं है। इन सारी चीजों के साथ
इबादत के साथ आपस में भाईचारगी पैदा करना, आपस में मोहब्बत पैदा करना। वो मोहब्बत कैसे पैदा होगा? अगर किसी दो भाई के दरमियान नफरत है तो पहले भाई को जाकर के बोल देना है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। हालांकि झूठ बात है ये, अल्लाह के रसूल ने इस बात को, इस झूठ में कोई पकड़ नहीं फरमाई है। इस झूठ के पीछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जायज है, बोल सकते हैं। उनके पास जाकर के इस तरीके से बोलना कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तुम्हारे बहुत अच्छा सोच रहा है। फिर बड़ा भाई के सामने जाकर के बोल, छोटा भाई के सामने कि तुम्हारा बड़ा भाई के सामने जाके बोलना है कि भाई तेरा छोटा भाई जिससे तू नफरत करता है, जिससे तू हमेशा झगड़ते रहता है, उस भाई ने तो तेरे लिए रात में उठ करके दुआएं की है और तेरे नाम पे सदके किए हैं और तेरे लिए लोगों से दुआएं भी करवाए हैं। इस तरीके की बात करेंगे, क्या आपस में माहौल ठीक नहीं होगा? क्या आपस में भाईचारगी पैदा नहीं होगी? क्या आपस की सारी नफरतें, सारी अदावतें, सारी दुश्मनियां खत्म नहीं होगी? आज अगर ये दुश्मनी है तो ये मेरे और आपकी कमी है, मेरी और आपकी कमी की वजह से है। हम क्या है? हम तो कान के कच्चे बन गए हैं, हम कान के कच्चे बन गए हैं। हमें कोई कान फूंक देता है कि फलना गोतली तो हेरंग को बोलते रहो, बस लिया झगड़ा उठाए से नाम नहीं बोलती, गाड़ी चलते रहती है एकदम स्पीडो में, नाम नहीं बोलती कि मैं तो है गाली देशू। अब ये सुन करके ये माना मतलब निकाल करके हम रह दशा हुए ना हुए, हम रह दशा करेंगे, हम ही फलना लगत बोलना अल्लाह। अब ये भी शुरू होते होते आपस में तनाव शुरू हो जाता है। तनाव शुरू होने के बाद मुसलसल चलता रहता है। तो इन सारी चीजों को, इन सारी नफरतों को, इन सारी बीमारियों को, इन सारी खराबियों को कौन दूर करेगा भाई? कोई नबी आने वाला है? कोई किताब उतरने वाला आसमान से? नबी मोहर लगा के गए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई नबी आने वाले नहीं है, कोई किताब उतरने वाला नहीं है। इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत वहदा का लक़ब दिया है कि उम्मत एक वाहिद उम्मत है जिसको अल्लाह ताला ने अजीब शान से नवाजा है, निराली शान से नवाजा है। लेकिन यह उम्मत इतनी बिछड़ी हुई है, इतनी आपस में तनाव पैदा। आज फ्रांस, इंग्लैंड वाले, जापान वाले, जर्मन वाले, ये बड़े बड़े ओहदेदार हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुसलमान बहुत स्पीड में इस्लाम बढ़ रहा है। या मुसलमान कह रहा है कि पठान आगे जा रहा है, वो कह रहा है कुरैशी आगे जा रहा है, वो कहा वहाबी आगे जा रहा है, वो बोल रहा है सुन्नी आगे जा रहा है। वहां वो लोग परेशान है कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है, या मुसलमान परेशान है कि मुसलमान आगे बढ़ रहा है। अंदर सोचने, गौर फिक्र करने की बात है। आज हम अपने दीन को, अपनी शरीयत को, ये पंखे चला लें, लाइट नहीं है, पंखे चला लीजिए भाई, गर्मी है। तो मतलब जब गोश भात नहीं खाए, गोश भात हम नहीं खेलो खा छे नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखे, बात चल रही थी दीन और ईमान की, बात चल रही थी अपने जात पर गौर फिक्र करने की, बात चल रही थी अपने जात पर गौर फिक्र करके उस वाहिद जात की, उस बनाने वाले जात की बड़ाई बयान करना, उस बनाने वाली जात की इबादत करना, और इस बनाने के पीछे का मकसद क्या, क्यों बनाया अल्लाह ताला ने हम तमाम को? इबादत के लिए बनाया। एक जम्मू कश्मीर, नाम सुना होगा आपने, जम्मू के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन जम्मू कश्मीर के, उनके पास एक नौजवान आया, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनके पास एक नौजवान आया। तो नौजवान ने कहा कि मुफ्ती साहब, मुझे अगर किसी को दीन की दावत देनी हो, किसी के सामने इस्लाम को पेश करना हो, किसी को ईमान के अंदर दाखिल करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुफ्ती साहब ने फरमाया, देख भाई, इस्लाम की दावत देनी हो, इस्लाम फैलाना हो, ईमान कबूल करवाना हो, तो सबसे पहले तुझे खुद मोमिन बनना पड़ेगा, सबसे पहले तुझे खुद मुसलमान बनना पड़ेगा। तो उस नौजवान ने कहा, हज़रत जी बात आप समझे नहीं, आपने बात समझा नहीं।
मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अगर किसी को दावत देना हो, यानी मैं जो आपके सामने बैठा हुआ हूं, मुझे अगर किसी को दावत देना हो तो क्या करना पड़ेगा? मुफ्ती साहब ने फरमाया, ओ नादान, मैं तुझे ही कह रहा हूं, क्या तू सच्चा और पक्का मुसलमान है? क्या हाँ जी मुसलमान हूं मैं। फजर की नमाज पढ़ी कि आंख नहीं खुली? अरे तू नादान, फजर की नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो ईमान से खारिज हो जाता है, कुफ्र के दर्जे तक पहुंच जाता है। फिर तू कैसा मुसलमान है और कैसे ईमान की दावत देगा तू इसे? आज हम इसलिए पीछे हैं, आज हम इसी वजह से तबाही के दाने पर हैं कि हमने अपनी हकीकत पर अमल करना छोड़ दिया है, हमने अपनी ईमान की रोशनी में अमल करना छोड़ दिया है। हम अपनी ईमान की रोशनी के बगैर चलना चाहते हैं, हम अपनी ईमान की रोशनी के बगैर रास्ता ढूंढना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई अंधेरे में कोई निकले और जाकर के उसके बाद रोशनी भी ना हो, वो रास्ता भी पा जाए। ये शाज़ और नादिर, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई पहुंच जाए राह रास्ते तक। अंधेरे हैं, जुल्मत है, गुमराही है, उन सारी चीजों में ईमान एक नूर है, ईमान एक रोशनी है, ईमान एक चिराग है। उस चिराग को लेकर के हम बढ़ेंगे आगे, उस चिराग को लेकर के खड़े होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद भी आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें परेशान होने से भी बचा लेंगे, अल्लाह ताला सारे हालात से भी हमें बचा लेंगे। लेकिन हमारा हालात ये बना हुआ है कि भाई हमें अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, चाहे शरीयत की नाफरमानी हो जाए, चाहे अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो जाए, चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की धज्जियां उड़ाया जाए, जनाजा निकाला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारनी है। फिर कुरान भी ललकार कर रहा है, ललकार कह रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, कि वो लोग जो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहता है, तो याद रख ले, यहां मर्जी की जिंदगी अल्लाह ताला दे तो देगा, लेकिन जब यहां से दूसरी दुनिया की तरफ हमारा सफर होगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी मर्जी से जिंदगी गुजरवाएंगे। और इस दुनिया में रह करके हमने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा और पैदा फरमाया, उस मकसद के तहत हमने जिंदगी गुजारी, उस मकसद को पूरा किया, तो हमें रोजे महशर में कहा जाएगा कि अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जी ले, अपनी मर्जी के मुताबिक जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जा, अपनी मर्जी के मुताबिक जिस ऐशो आराम की तेरी चाहत है वो मांग ले, तुझे मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस दुनिया के अंदर हम तमाम को, इस दुनिया के अंदर जिंदगी जब तक अल्लाह ताला ने दी है तब तक अपने रब और रसूल की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारनी होगी, अपने रब और रसूल की मातहती में जिंदगी गुजारनी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। हमारे सारे तरीके बेकार हो गए हैं, हमारे सारे तरीके हमसे छूट गए हैं, हमने बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया है सारे तरीकों को, बस अपनी मर्जी के मुताबिक हमें चलना है। क्यों कि फजर में अभी ठंडी का जमाना आ रहा है, फजर में आंख नहीं खुलेगी, पानी ठंडा है, बहुत सारे बहाने हैं, ठंडी लगती है, लेट से पढ़ लेंगे। भाई ऐसा थोड़ी होता है, वक्त पर आप नहीं पढ़ेंगे, फिर वक्त पर आप चाहेंगे कि हमें अच्छी खासी रोजी मिल जाए, कोई परेशानी ना हो, तो फिर परेशानी का सामना तो बदरजे औला करना पड़ेगा। आज अगर हम ईमान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, आज अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो याद रखें हालात अल्लाह तबारक व तआला इतना पेचो ताब के साथ हमें दे देगा कि हमें समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या करना है, कैसे आगे चलना है। आज हमारे मुआशरे में यह हालात बना हुआ है कि भाई हम एक दूसरे को देख करके परेशान होने लगते हैं, एक दूसरे को देख करके पेट में दर्द होने लगता है कि ये बंदा ये बंदी कैसे आगे बढ़ रहा है, ये बंदा क्यों आगे जा रहा है। हालांकि सहाबा के जमाने में, सहाबियात के जमाने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होता यह था कि भाई लोग एक दूसरे को उन बातों में, उन मामलों में देख करके जलते थे जिसमें अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिले, जिसमें अल्लाह की मोहब्बत मिले, अल्लाह की इबादत होती। अल्लाह की इबादत में कोई अगर 10 पारे कुरान शरीफ पढ़ती तो दूसरा देख करके जलती कि हाँ ये 10 पारे पढ़ ली इसने, मैं 15 पढ़ के दिखाऊंगी। इसने आज 10 नफलें पढ़ी है, मैं 20 पढ़ के दिखाऊंगी। इसने आज 12 तहज्जुद पढ़ी है, मैं 20 पढ़ के दिखाऊंगी। इसने आज 5, 6, 7, 8 रकातें पढ़ी है, मैं 12 पढ़ के दिखाऊंगी। इस तरीके का मुकाबला चलता था। आज हमारे यहाँ मुकाबला क्या है?
मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ मुकाबला क्या है कि भाई अगर 2 भैंस है मेरे पास तो 4 कैसे हो जाए, अगर 2 गायें हैं तो 3 कैसे हो जाए, हमारे पास 1 दुकान है तो 2 कैसे हो जाए। ये इस चक्कर में हम फंसे रहते हैं हर वक्त, यही दुनिया यही दुनिया। वो आमिर साहब ने वो किस्सा नहीं सुनाया था, अगर हमने बच्चों को अच्छी तालीम दी, अच्छा बनाया, दीनी तालीम से वाबस्तगी रखा, बच्चों का अच्छी तालीम दी, तो याद रखें ये बच्चे हमारे लिए आखिरत का भी, आखिरत के नजात का सबब भी बनेगा ये बच्चा। और अगर हमने दुनियावी तालीम दी है, दीनी तालीम से कोई मतलब ही नहीं रखा है, तो याद रखें वो दिन दूर नहीं, फिर कब मरेंगे, कब चूहा आपका नाक और कान काट के ले जाएगा पता तक नहीं चलेगा। एक ही बेटा था ना उस शख्स का, सुनाया था ना, याद है ना आप लोगों को वाकया। इसलिए अगर अच्छी तालीम दी होती, दीनी तालीम दी होती, दीन से वाबस्तगी में रखा होता अपने बच्चे को, तो ये दिन देखना ना पड़ता, ये हालात देखने ना पड़ते अपनी अहलिया का। आज हमें दीन से कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं। दीन की जरूरत कब, जब कोई मर जाए तब कुरान खानी करवा लेंगे, जब कोई मर जाए तब 2, 4, 5 दिन तक नमाजें पढ़ लेंगे, जब कोई रमजान आ जाए तब पढ़ लेंगे। हमने दीन को अपनी जरूरत के मुताबिक समझ लिया है और अपनी जरूरत के मुताबिक दीन को चलाने की कोशिश की है। याद रखें ये शरीयत किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं चलने वाला है, ये शरीयत के मुताबिक से जो चलेगा वो कामयाब होगा। अगर शरीयत के मुताबिक नहीं चले तो याद रखें नाकामी, नामुरादी हमें सामने आएगी, हमारे कदमों को चूमेगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। इन पर जो किताब नाजिल हुई थी वो जबूर नामी किताब नाजिल हुई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा, ये वाकया इस वजह से सुना रहा हूं ताकि मुआशरे से गंदगी को निकाल फेंके, मुआशरे से एक दूसरे को टांग खींचने के बजाय हम एक दूसरे का सपोर्ट करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए दुआएं करने की कोशिश करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पूरी लश्कर के साथ कहीं निकल रहे थे, अपने पूरी लश्कर के साथ कहीं निकल रहे थे तो एक चूंटी ने देखा। चूंटी जाकर के अपने पूरे मोहल्ले में ऐलान कर रहे हैं, या अय्युहन नम्ल दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ए चूटियों की जमात, ए हमारे कबीले वाले, सुन लो कान खोल करके, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ। सुलेमान और उसका लश्कर आ रहा है, उसके पैरों के नीचे दबे जाओगे, कुचले जाओगे, पीसे जाओगे, उन बेचारों को पता नहीं चलेगा, लाशूरी के आलम में रहेंगे। क्योंकि एक चूंटी की कदो कामत क्या होती है और एक इंसान की कदो कामत क्या होती है वो हमें पता है। हमारे पैरों के नीचे चूंटी आ जाए पता नहीं चलता है। चूंटियों ने अपनी हमराहों का, अपनी जमातों का, अपने कबीले वालों का ख्याल रखा और पूरे कबीले में ऐलान करके सबको घर में दाखिल फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला को यह बात इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कुरान करीम के 19वें सिपारे के अंदर अल्लाह ताला ने चूंटी के नाम से सूरह नम्ल करके एक पूरी सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दी। क्या हम मुसलमान, हम इंसान अगर इस तरीके की भाईचारगी पैदा करेंगे, इस तरीके से बिछड़े हुओं को उठाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से बिछड़े हुओं को मिलाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से जो पीछे हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो परेशान है उनकी परेशानी को दफा करने की कोशिश करेंगे, जो मजलूम है उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, जो परेशान हाल है, बेवा है, बेसहारा है, उनका सहारा बनने की कोशिश करेंगे। क्या अल्लाह तबारक व तआला को हमारी ये अदा पसंद नहीं आएगी? क्या अल्लाह तबारक व तआला हमें नहीं नवाजेंगे? लेकिन हमने इन सारी चीजों को बिल्कुल बहुत दूर, हमने कोसों दूर छोड़ दिया है। हमने दूर दूर तक हमें ये हालात नजर नहीं आते हैं कि भाई इंसान का दर्द क्या होता है, इंसान के दर्द को समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को 2 मकसद के लिए पैदा फरमाया। एक तो ये कि इबादत, दूसरा ये कि आपस में भाईचारगी, आपस में मोहब्बत, आपस में अखुवत, आपस में हमदर्दी, आपस में एक दूसरे का साथ दे करके चलना। ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे चाह करके हमें पैदा फरमाया है। वरना इबादत के लिए फरिश्ते बहुत सारे हैं,
वरना इबादत के लिए फरिश्ते बहुत सारे हैं। अगर हम अपने भाइयों को लेकर के नहीं चले, अपने हमराहों को लेकर के नहीं चले, अपने हमचोलियों को लेकर के नहीं चले, आगे आप अकेले चले जाए और कामयाबी मिल जाए, तो ये कामयाबी नहीं, ये नामुरादी है, ये नामुरादी की बात है। आज हमारे अंदर इतनी सारी बीमारियां पाई जाती है, इतने सारे बेकार बातें पाई जाती है, अगर उसको बयान करने जाए तो इतना ज्यादा वक्त चाहिए। कितने सारे हमारे अंदर जो बेकार बातें हैं, लघु बातें हैं, लहव लईब हैं, उन सारी चीजों से हमें निकलना होगा, उन सारी चीजों को हमें निकाल फेंकना होगा। एक तरफ से दो चार चंद बातें मैं गिना देता हूं। सबसे पहले हमारे अंदर से ये बीमारी निकालनी होगी कि एक दूसरे के खिलाफ किसी का कान फूंकना, किसी के खिलाफ किसी को भड़काना, किसी के खिलाफ साजिशें करना, किसी के खिलाफ झगड़ा लगवाना, किसी के घर को तोड़ना, किसी रिश्ते को तोड़ना, किसी रिश्ते में भंग पैदा करना, किसी जुड़े हुए को दो टुकड़ों में तकसीम कर देना, ये सारी बीमारियां हमारे अंदर पाई जाती हैं। अगर हम इन सारी बीमारियों से पाक हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मनचाही जिंदगी आखिरत में अता फरमाएंगे। अगर इन सारी बीमारियों को लेकर के हम दुनिया से गए तो याद रखे, फिर रब का पकड़ बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उसकी दारोगिरी, उसकी पकड़ बड़ी अलम रसा है, बड़ी तकलीफ दे है। हमें तो पता नहीं चलता है, हम कह देते हैं ना आसानी से कि भाई कब्र का हाल मुर्दा जाने, क्या कुछ नहीं होने वाला है, दफना के आएंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, पेट फटेगा, मिट्टी हो जाएंगे। हालांकि आखिरत की मनाजिलों में, आखिरत की जितनी मंजिलें हैं, उन तमाम मनाजिलों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे खतरनाक और सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। जो बंदा यहां दुनिया के अंदर रब की फरमाबरदारी करके, रब रसूल की मान करके जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से जाएगा, या कोई बंदी जाएगी, तो कब्र में जाते ही कब्र उसकी आओ भगत करेगी, कब्र उसकी खुशामदीद करेगी, कब्र उसकी वेलकम करेगी और कहेगी तू जमीन के ऊपर मुझे बड़ा प्यारा लगता था, तू जमीन के ऊपर मुझे बड़ा प्यारा लगती थी, तू जमीन के ऊपर सबसे बेहतर लगती थी, आजा आज मेरे सुलूक तू देखेगी, मैं तेरे साथ कितना अच्छा सुलूक करती हूं। जमीन कब्र ये पुकारेगी। और अगर कोई बंदा रब रसूल की नाफरमानी करके जाएगा, या कोई रब रसूल की नाफरमानी करके जाएगी, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार के करके जाएगी, तो याद रखे वो कब्र खतरनाक गढ़ों में से गड़ा बन जाएगा उसके लिए। अल्लाह के रसूल, मैं बार बार मिसाल दे करके बता करके कहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से फरमाया कि भाई कोई नाफरमानी करके जाता है तो कब्र उसको इतना दबोचती है कि पसली का जो हड्डी है वो एक दूसरे में इस तरीके से घुल करके इतना उसका जिस्म हो जाता है। ये कब्र की मंजिलों की मैं बात कर रहा हूं। कोई नेक इंसान इस दुनिया से जब जाता है तो सबसे पहले उसके रूह आसान तरीके से खींची जाती है। इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बिल्कुल आसानी से उसका रूह खींचता है, बिल्कुल आसानी से। फिर उसके रूह को अच्छी तरीके से इज्जत और एहतराम के साथ आसमान पर ले जाया जाता है, जहां फरिश्तों का कोहराम होता है, फरिश्ते खुशी मना रहे होते हैं, फरिश्तों में एक हंगामा होता है कि फला बंदा बड़ा अच्छा था, आ रहा है, उसके लिए हम बेताबो बेकरार थे, अब वो आ रहे हैं, हम खुशियां इस चक्कर में हम खुशियां मना रहे हैं, इसलिए हम खुशियां मना रहे हैं। अंदाजा लगाए ना, जिसके रूह को इतना इज्जत और एहतराम दिया जाए, जिसके रूह को इतना इकराम किया जाए, जिसके रूह को फरिश्ते की खुशी दी जाए, तो उसके जिस्म, उसकी बॉडी को कितना खुशी मिलेगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। और हम आसान जुबान में कहते हैं ना, जैसा रूह वैसा फरिश्ता, जैसा रूह वैसा फरिश्ता। अच्छे अमाल करेंगे तो अच्छा फरिश्ता, यानी अच्छी तरह फरिश्ता तो वही है, फरिश्ता बदलता नहीं है। मौत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दे रखा है, वही आता है सिर्फ मौत का रूह कब्ज करने के लिए। लेकिन जो जैसा होगा, जिसके अमाल जैसे होंगे, जिसके करतूत जैसे होंगे, जिसके नेक अमाल ज्यादा होंगे, उसके लिए वो फरिश्ते उतना ही बेहतर और बन सवर कर खूबसूरती में आता है, ताकि उसको परेशानी ना हो।
आपने देखा होगा जिसका रूह कब्ज होता है, रूह कब्ज होते वक्त वो बड़ा परेशान रहता है, इधर करवट लेता है, उधर करवट लेता है, रूह निकलती नहीं है जल्दी, कभी गला खींचता है, कभी सीना तानता है, कभी पैर खींचता है। ये सब क्या है? यूं लिखा है हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि इंसान के मौत के वक्त, इंसान को मरते वक्त अगर उसकी जुबान में बोली दे दी जाए तो उसके आसपास कोई खड़ा रहना गवारा नहीं करेगा, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता उसके सामने आता है ना तो वो बेताबो बेकरार होकर के चिल्लाता है, परेशान होकर के चिल्लाता है, चीखता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, चीखता चिल्लाता है। और उसके चीखो पुकार की वजह से, आओ बुका की वजह से मौत के फरिश्ते आते सबसे पहले उसकी आवाज को बंद करते हैं ताकि इसकी आवाज किसी कानों में ना पड़े, ताकि इसकी आवाज से कोई परेशान ना हो, उसकी आवाज को बंद करता है। फिर उसको जो परेशानी करवट जो लेता है, खुदा की कसम अगर उसकी जुबान में ताकत दे दी जाए ना तो लोग यही सोचेंगे कि कहीं मैं टकरा करके अचानक मर जाऊं, ऐसे मौत मुझे ना आए। इसलिए हम तमाम को अपने रूहों को पाक करने की जरूरत है, अपने दिलों को पाक करने की जरूरत है। हमारा रूह पाक होगा, हमारा दिल पाक होगा तो हमारे लिए मौत के फरिश्ते इतने ही बन सवर के आएंगे, हमें इतनी ही कम परेशानी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आखिरी वक्त है, इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तशरीफ लाए हुए हैं, इजाजत मांग रहे हैं। नज़ा का आलम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है, बुखार के आलम में है, तो दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आया, आवाज देने वाली अम्मा फातिमा थी कि मन दक्कल बाब, के दरवाजे को किसने खिटखिटाया, कौन है दरवाजा पर? तो दरवाजे से अंदर आवाज मिली कि अंदर आने की इजाजत है। तो अम्मा फातिमा ने दरवाजा खोला और डांट दिया, झिड़क दिया जिब्राइल को कि मेरे बाबा का हालत खराब हो गया है, मेरे बाबा के बिल्कुल नज़े का आलम चल रहा है और तुझे इजाजत की पड़ी है, आजा देहाती कहीं का। इस तरीके से डांट करके अंदर बुलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहचान लिए ना कि जिब्राइल है, तो फौरन अम्मा फातिमा के सर पर हाथ रखा कि बेटी फातिमा, ये तेरे बाप का मकाम है कि जिब्राइल भी यहाँ इजाजत लेकर आते हैं, इस तरीके से ना झिड़को इन्हें। सलाम किया, अल्लाह ने आपको सलाम पेश किया है। सलाम का जवाब दे करके जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं फरमाया, या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये पूछते हैं क्या आप अभी दुनिया में रहना पसंद करेंगे या आप जाना चाहेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने यूं नहीं, हम होते तो क्या कह देते कि नहीं अभी और 200-400 साल और लिखवा लो, बाद में जाएंगे, फिर आना बाद में सोच के बताएंगे या मशवरा करके बताएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं आने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मेरे अल्लाह से जरा पूछ करके आओ, मैं आ तो जाऊंगा, मेरे पीछे आने वाली उम्मतों का क्या हाल होगा, उनका पुरसाने क्या हाल क्या होगा, उनके क्या हालात बनेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम फरमाएंगे या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचते हैं और ये सारी बातें सुनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खबर मिलता है कि जिब्राइल जाओ कह देना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मोहम्मद आप तशरीफ ले आइए, आपकी उम्मत गुनाह करती जाएगी, गुनाह कर करके सारे आसमान और जमीन की जगहों को भर देगी, हाथ उठा करके दो आंसू बहाएगी, मैं माफ कर दूंगा। आज हम बख्शे बख्शाए हैं तो किन की वजह से है? आज हम बचे हुए हैं, ठंडी सांसें ले रहे हैं तो किन की वजह से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में ले रहे हैं। लेकिन जिनके सदके में ठंडी सांस हमें मिल रही है, जिनके सदके में अच्छी जिंदगी मिल रही है, जिनके सदके में हमें सारी चीजें अल्लाह ताला ने मुहैया करा दी है, उन्हीं की सुन्नतों का हम जनाजा उठा रहे हैं, उन्हीं की सुन्नतों का हम धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हीं की सुन्नतों का हम मजाक बना रहे हैं। हम तमाम को इन बातों पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि भाई मैं जिंदगी गुजार तो रहा हूं, अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे कद्दो कामत दे करके भेजा है, क्या मैं अल्लाह के फरमा बरदारी कर रही हूं या नहीं कर रही हूं? क्या मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हूं या नहीं गुजार रही हूं? तो हम तमाम को इन सारी बातों पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो हमारी पैदाइश का मकसद है, अल्लाह ताला ने जो हमें दुनिया के अंदर भेजा है,
जिस मकसद के लिए भेजा है उस मकसद में हमें कामयाब होना है। होंगे इंशाअल्लाह। कामयाबी का मतलब यह है कि भाई जो आता है आपको अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं, सजदा करें, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मेरे अंदर बुरी आदतें हैं उसको भी खत्म कर दे, अल्लाह मेरे अंदर चुगली वाली आदत है उसको भी खत्म कर दे। देखिए कोई इंसान इस तरीके का दावा नहीं कर सकता है कि मुझसे गुनाह नहीं होता। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं गुनहगार नहीं हूं। कोई इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि मैं जन्नती हूं। कोई इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि मेरे से कोई नाफरमानी नहीं होती है। हर इंसान गुनाह का पुतला है और बेहतरीन बंदा वो है, बेहतरीन बंदा वो है, 3 बार बोल रहा हूं, बेहतरीन बंदा वो है जो रोजाना 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 कम से कम 70 मरतबा इस्तिगफार करता है, या बंदी 70 मरतबा इस्तिगफार करती है। आप तमाम के तमाम बेहतरीन बंदों में से बनेंगे इंशाअल्लाह। इस्तिगफार कैसे करना है? इस्तिगफार खाली नहीं बोलना है, अस्तगफिरुल्लाह भी बोल लेंगे तो भी अल्लाह ताला माफ करने पर कादिर है। अल्लाह तो दिलों की भेदों से वाकिफ है ना। अल्लाह ताला को दिल चाहिए ना, दिल की सफाई चाहिए ना। 70 मरतबा नहीं बल्कि रोजाना 600-700 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह बोलने में कितना वक्त लगता है? मुश्किल से आधा मिनट लगता है 1 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह बोलने में। अगर हम रोजाना 100-200 मरतबा बोल लेंगे, आदत हमें बन जाएगी। हम हमेशा के लिए इसको अपने जिस तरीके से रोजमर्रा का काम है, खाना पीना, अपने शोहर बाल बच्चों की खिदमत करना, ऐसे ही इन चीजों को भी पाबंदी में ले आएंगे तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। और रोजाना खूब इस्तिगफार कीजिए, इस्तिगफार रोजाना, और दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन। कोई लंबा चौड़ा दुरूद शरीफ नहीं बता रहा हूं। आप जमात में जाएंगे, कोई मस्तूरात की जमात आएगी, इतना लंबा चौड़ा दुरूद शरीफ बताती कि जो बेचारी अल्लाह का नाम लेना नहीं जानती वो सुन के सर में दरसर पकड़ के बैठती है कि की बतावे जाए, दिन फैलावा ले ली इसकी, दीना खत्म कर ली सी। ये हाल होता है। उधर मस्तूरात की तालीम होती है, वो कौन है पता नहीं, कौन है एक बेचारी नहीं जानता हूं, अल्लाह उनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। वो आ करके इतना लंबा चौड़ा वो दुरूद शरीफ वगैरह है, जो इस्तिगफार वगैरह इतना लंबा पढ़ती है, जो बेचारी कभी नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ी नहीं, जो अल्लाह का नाम कभी नहीं ली है, वो तो ऐसे ही भड़क करके जिंदगी में आगे नहीं आएगी। इतना मुश्किल सी दीन मुश्किल नहीं, दीन आसान है, लेकिन आसान इसको करना हो, आसान करने के लिए आना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ पढ़ते रहेंगे ना तो दिल जब साफ होगा ना, इसका अगला जुमला और पिछला जुमला खुद ब खुद अल्लाह ताला आपके दिल में डाल देगा, ये गारंटी है। लेकिन दिल की सफाई होनी चाहिए, दिल की सफाई होनी चाहिए। एक बर्तन में पानी पड़ा हुआ हो, गंदा नहीं साफ पानी पड़ा हुआ हो, और आपसे आप किसी को कहें दिया दूध के लिए जाए कि कहें दूध दे दें, बादाम पानी अलग के लो, हो सकता है? नहीं हो सकता। दिल में गंदगी भरा हुआ है, दिल में दुनिया के सारे कचरे भरे हुए हैं। अब उस दिल के अंदर अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बतों को बिठाएंगे, क्या बैठेगा? मोहब्बत नहीं हो सकता ना। जैसे दूध और पानी एक जगह नहीं जमा हो सकता है, दूध को आप लेंगे भी किसी बर्तन में तो पहले उसको साफ करेंगे अच्छी तरीके से, सूंघेंगे कहीं महके छिटने, गर्म कर देंगे कि महक दूर हो जाए कि मेरा दूध ना फटे। जब एक दूध के लिए इतना एहतियात किया जा सकता है तो दुनियावी आम मशरूबात है, तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत जिस दिल में बिठाना है तो उस दिल को कितना साफ करना चाहिए। आपको गैस पर से किया है कि साफ करना चाहिए, माँ खत्म करना चाहिए दिल। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम ही माओ बहनों से गुजारिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर गोंडा एक जिला है, उसमें बहराइच नामी एक गांव है, गैरों ने उसको तबाह व बर्बाद कर दिया है।